press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اور 8 مئی سے لے کر اور 16 مئی تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن رہے گا. سارے شاپنگ مالز بند رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہیں, جیسے کہہ سکتے ہیں پارک ہو گئے, کوئی اور جگہیں ہوئی جہاں پہ بچے یا بڑے جاتے ہیں, وہ ساری جگہیں جو ہیں وہ سب پلیسز کو بند کر دیا گیا ہے کمپلیٹلی. صرف گروسری سٹورز کھلے ہوں گے جو کہ صبح 9 بجے سے لے کے اور شام کو 6 PM تک جو ہے وہاں سے لوگ گروسری لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ میڈیکل سٹورز اوپن ہوں گے. وہ تو خیر 24 آورز میڈیکل سٹورز کو پرمیشن ہے کہ وہ کھلے رہ سکتے ہیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں, ساری شاپس جو ہیں, ہر طرح کی پارٹیز اور افطار پارٹیز اور یہ عید پارٹیز اور یہ پارٹی وہ پارٹی سب بند ہے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور شاید اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم لوگ سنبھال سکیں کرونا جس طرح سے پھیل رہا ہے اس کو. اور ہمارے جو دوست ہمیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ضرور ماسک ضرور پہنیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اور ان کیس اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل, ویسے تو میں دعا کرتی ہوں کہ کسی کو نہ ہو, تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے اس کرونا کو ہرا کر اور واپس ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ نارمل روٹین لائف میں واپس آنا ہے. تو بالکل ہمت رکھیے اور ڈٹ کے مقابلہ کیجیے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آج آپ کو تھوڑی سی اپنی گورنمنٹ کی تھوڑی سی باتیں کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور اب ہم جی چلتے ہیں آگے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جی عمرہ کرنے چلے گئے ہیں سعودی عربیہ. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ نیا پاکستان جو ہے انہوں نے بہت سکسیسفلی نیا پاکستان لانچ کر دیا ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جو وہاں کے جو کیا نام ہے ان کا, کنگ جو ہے سعودی عرب کے, ان کو بھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے جو ہے ان عمران خان صاحب کو ہی فالو کرتے ہوئے محمد بن سلمان جو ہے وہ کس طرح سے نیا سعودی عرب بنا سکتے ہیں. تو بالکل جو وہ نیا سعودی عرب بنانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ایڈوائس کے ساتھ, تو بالکل وہاں پہ جو پاکستانی جاب کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جاب کا کہیں کسی اور کنٹری میں بندوبست کر لیں, اس لیے کہ خان صاحب کی ایڈوائس کے بعد تو واٹ لگ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب عمرہ کرنے گئے ہیں, کیونکہ جی لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں رمضان کے, اور خان صاحب نے کہا چلو میں عمرہ بھی کر کے آ جاتا ہوں, ذرا فوٹو سیشن ہو جائے گا اور ذرا لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے گا, بڑا ریلیجیس ہوں. اور یہاں سے جاتے جاتے ان کے پارٹی کے جو یوتھیے ہیں, یہ جنہیں آپ جانتے ہیں یوتھیے کا مطلب, تو یوتھیوں نے ضرور خان صاحب سے کہا ہوگا کہ خان صاحب آپ تو بہت فیمس ہیں, آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے, آپ کو تو سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو تو لوگ دیکھ کے یوں یوں ہاتھ ہلاتے ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے عمرے میں کر کیا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں. تو دیکھیے. جی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں دوسری سائڈ پہ دیکھ کر, اور ان کے ساتھ جو ان کے جو ہوسٹ ہیں, جو ان کے میزبان ہیں, انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب یہ جو آپ کے ادھر ادھر لوگ ہیں اور ایسے سے ہاتھ ہلا رہے ہیں, وہ ایکچولی آپ کو ہاتھ نہیں ہلا رہے, وہ ہاتھ ہلا نہیں رہے, وہ ہاتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے خانہ کعبہ جو ادھر ہے اس کو جیسے چھو رہے ہیں یا اس کو ٹچ کرنے کے اس میں, اور اس کے لیے وہ ہاتھ اس طرح کر رہے ہیں. اور خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب اب تسی اتنے بھی مشہور نہیں ہو کہ جی لوگ عمرے کرنے آئیں گے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو ایک یہ لگے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو ٹچ کیا ہے. اور ایک جیسے ایک مذہبی آپ کو پتہ ہے کہ رسومات ہوتی ہیں, ایک مذہبی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ بجائے خود بھی وہ کرنے کے, خان صاحب سمجھے کہ سب لوگ ان کو دیکھ کے ہیلو ہیلو ٹٹا بائی بائی ہیلو ہیلو کر رہے, تو خان صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیا. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کسی نے ویڈیو بنا لی اور
हमारे काम आ गई वीडियो, हमें और क्या चाहिए होता है, हम तो खुद ये ढूंढ रहे होते हैं कि जी खान साहब कुछ करें और हम वो वीडियो लगा दें। तो बिल्कुल एक जो है एक बात और मैं यहाँ पे सोचती हूँ, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। एक मिरासी था ना, और वो जो नशे करते हैं, गाने वाने गाते हैं, मिरासी उसको बेसिकली कहते हैं, जो ये ढोल वोल बजा के जो गाने गाते हैं ना उनको। तो एक मिरासी ने एक शिकारी से कहा कि जी मैंने तो इजिप्ट में 100 चीते मारे। तो वो जो शिकारी था उसने कहा लेकिन इजिप्ट में तो चीते होते ही नहीं है। तो उस मिरासी ने कहा हाँ इसीलिए ना कि क्योंकि मैंने से सारे मार दिए। और इसके साथ एक न्यूज ये लगी हुई है इस जोक के साथ कि वैसे इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन इस जोक के साथ एक न्यूज ये है कि इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाने के बाद नया सऊदी अरेबिया बनाने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान को मदद की ऑफर कर दी है। यानी मतलब उनकी भी वाट लगने वाली है। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान उनकी बात को कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में होती हैं कि पाकिस्तान बना और इंडिया से अलग हो गया ये हिस्सा। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये 30 मिनट्स का गैप क्यों आ गया, 30 मिनट डिफरेंस क्यों है दोनों कंट्रीज में। कि आपके यहाँ जो है वो 8:30 होते हैं, तो हमारे यहाँ 8 o'clock होता है, आपके यहाँ 7:30 बजे। तो मैं तो उसी में कंफ्यूज रहती हूँ जब मुझे किसी चैनल से कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैडम 8 o'clock शो है, तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के या इंडिया के। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मुझे कहाँ का टाइम बता रहे हैं। तो मुझे अगर किसी को समझ में आए तो या किसी को पता हो तो प्लीज मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दें कि ये आखिर 30 मिनट्स का डिफरेंस क्यों आ गया दोनों कंट्रीज में। माना के अलग हो गए, माना के एक अलग कंट्री बन गई सब कुछ, लेकिन एक ही जगह पे रहते हुए जो है वो ऐसा कैसे हो गया कि एक तो 30 मिनट्स का डिफरेंस कैसे आ गया। और दूसरी बात ये, जो वसीतुल्लाह खान साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे थे अगर आप किसी चीज को काट के 2 टुकड़े करेंगे तो वो एक ही टाइम पे 2 टुकड़े हो जाएंगे ना। आप कोई केक को काटें, आप खीरे को काटें, टमाटर को काटें, वो एक ही टाइम पे उसके 2 पीस हो जाएंगे। तो फिर ये ऐसा कैसे है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे और भारत जो है वो 15 अगस्त को मनाता है। ये चीज भी अगर किसी को समझ आती हो ना, कोई बहुत काबिल बैठा हो और हमें देख रहा हो, तो प्लीज वो भी हमें बता दें। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप ट्विटर पे आके भी बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम बात कर रहे थे आसिम सलीम बाजवा साहब की। आसिम सलीम बाजवा साहब ने, जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी सी पैक को कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं करा सकती। बिल्कुल सर, सी पैक के साथ आपने ये भी कह देना था कि सी पैक को कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं करा सकती, और मुझसे कोई पापा जॉन पिज्जा की रसीद नहीं मांग सकता, ना कोई मुझसे रेसिप्ट मांग सकता है, ना मैं दूंगा, और ना ही जो है वो सी पैक को कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। और खासतौर पे सी पैक को तो शायद हो सकता है कभी कुछ हो भी जाए, अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन एक बात है कि कभी हो भी सकता है। लेकिन आपसे बहरहाल रसीदें कोई नहीं मांग सकता। वो वाली चीज तो नहीं है ना जो नवाज शरीफ साहब के पीछे आप लोग लग गए थे। एक चीज और मुझे खान साहब से कहनी है, इमरान खान साहब से, कि प्लीज 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 खान साहब, हमने आपको 3 साल बर्दाश्त कर लिया है, हमारा आपने जिसे कहते हैं ना, आपने हमारी वाट लगा दी है इन 3 साल में, लेकिन प्लीज आप बाकी के 2 साल भी पूरे करके जाइएगा, ताकि ये जो यूथियाज है ना आपकी पार्टी के, जो हर वक्त ट्विटर पे लगे होते हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बोल रहे होते हैं कि जी वो जो है अबसार आलम साहब के कान के आईपॉड क्यों नहीं गिर गए जब उन्हें गोली लगी, अब हमारे भी तो लगे हैं ना, हमारे तो गिर जाते हैं, उनके क्यों नहीं गिरे। तो इस तरह की जो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं ना, ये जो सो कॉल्ड खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, तो बेकार किस्म के, जो अबसार आलम साहब जिन्होंने 27 साल दिए, नॉट मोर देन, कहना चाहिए कि आप समझ रहे हैं कि मोर देन 27 ईयर्स जिन्होंने अपने आप को जर्नलिज्म के लिए दे दिया, उनके ऊपर आप इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो बिल्कुल इमरान खान साहब प्लीज आप बाकी के भी जो है ना वो अपना टाइम पूरा किएगा 2 साल और, ताकि ये जो आपके यूथियाज है ना, इनका जो कीड़ा है, और वो कीड़ा उनका कहाँ है आप समझ सकते हैं, सर में भी है, वैसे दिमाग के अंदर भी, लेकिन और भी कहीं है। तो वो कीड़ा जो है ना वो तो कम से कम मर जाए। अब देखिए इमरान खान साहब यहाँ कितने परेशान बैठे हुए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त धूप में बैठे हैं या वो इस वक्त कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन खैर हम आपको बता दें कि
जो ड्रग्स माफिया है पाकिस्तान में, जो ड्रग्स माफिया है, उसको इमरान खान साहब ने परमिशन दे दी है कि वो ड्रग्स में 20% इजाफा कर सकते हैं, यानी उसकी प्राइस में 20% इजाफा कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने उस समरी के ऊपर साइन कर दिया है, यानी अब जो भी आप मेडिसिन खरीदेंगे पाकिस्तान में, वो आपको 20% ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बहुत आसान काम है, फौत हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं कि वो लोगों को जो है ना वो टपका दें। तो आगे हम चलते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि वो जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी ना, जहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो घूम रहे थे पकौड़े समोसे जलेबियां लेते हुए, तो वो उनके लोग कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब, उनके यूथियों ने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है वो समोसे पकौड़े लेने नहीं गए थे, वो असल में वो नाड़ा ढूंढ रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो नाड़ा कमरबंद। हाँ, तो वो 550 का वो अब हो गया, मैंने उसको आपको 520 बताया था, लेकिन अब वो 550 का हो गया। तो वो असल में वो नाड़ा ढूंढने के लिए गए थे, तो वो रास्ते में उनको समोसे पकौड़े वाले मिल गए, तो उन्होंने कहा चलो इनको भी मैं देख लेता हूँ। तो इसी तरह से हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली कॉल करके पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की झाड़ पिलाई है। और उन्होंने कहा कि जी आप लोग काम क्यों नहीं करते, आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आते कंट्री में, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे जिससे कंट्री का नाम रोशन हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे जिससे जो है पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। तो सर जब आप जाके लोगों को बोलेंगे कि हमारे पास तो जी 40,000 टेररिस्ट बैठे हुए हैं, आपके जो आप जिहादी पैदा करते हैं, आप ये बताएंगे लोगों को कि आप जिहादी पैदा करते हैं और आप जो है दूसरी कंट्रीज में गड़बड़ कराने के लिए भेजते हैं, आप ये बताएंगे कि आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट का नाम आप लेंगे और आप कहेंगे कि जी उन्होंने जिहादी पैदा किए हैं और उन्होंने जो है ये मार्केट कर रखी है पूरी दुनिया में, और जहाँ जहाँ टेररिस्ट जाते हैं वो प्रोडक्ट तो हमारा अपना है। तो फिर कि ये एम्बेसडर्स बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको अगर आप आगे लेके जाना होता है तो उसके लिए कोई अच्छे काम करने पड़ते हैं, कोई इकोनॉमी पे एजुकेशन पे काम करना पड़ता है, अपनी जैसे कहना चाहिए कि लोगों के अंदर से ये इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म जो है उसको ख़त्म करना होता है। सिर्फ आपके ये कह देने से कि जी एम्बेसडर्स को कि जी तुम तो कोई इन्वेस्टमेंट लाए नहीं हो, उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जो तरह की इमेज आपने जो इमेज क्रिएट की है इंतहा पसंदों की, और जो अपने जिहादियों की फौज जो आप बनाते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, और जगह जगह आपके यहाँ जो है वो तरह तरह के मौलवी माफिया निकलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो जाहिर है उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, किसी का दिमाग खराब है कि वो यहाँ पर आके अपनी कंपनी बनाएगा और उसके बाद उसकी जो भी उसकी आउटलेट होगी उसके ऊपर ये लोग हमला कर दें या कुछ भी कर दें, तो इससे कुछ नहीं होगा। सर एम्बेसडर्स के ऊपर नाराज ना हो, आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को ठीक कर लें तो फिर शायद कुछ हो पाए। यूरोपियन यूनियन वाले एक तरफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो खुद एक बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद हैं, और बल्कि उनके हमदर्द हैं। वो कहते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं पाकिस्तान में उसके इमरान खान साहब हमदर्द हैं और उनकी बहुत मदद करते हैं। और इमरान खान साहब दूसरी तरफ दावा करते हैं कि जी मैं तो यूरोप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो भी इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से जान गए और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जान गए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आगे जो है वो इमरान खान साहब जो है किस तरह से लेके कंट्री को चलते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये 2 साल जो इनके पास बच गए हैं उसमें ये कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कि दुनिया में ये इमेज इनकी जो बन गई है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट है और यहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं, वो बात जो है कहीं ना कहीं इमरान खान साहब उसको कंट्रोल कर पाए। लेकिन खान साहब ये सर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, रोने से काम करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर बने आप, कोई मजाक नहीं है। तो बिल्कुल काम कीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही था कि हम आगे जो है वो आपको जो मुल्ला माफिया है उनकी वीडियोस दिखाते रहेंगे। हम ढूंढ रहे हैं, जैसे हमें कोई और मिली हम फिर हाजिर होंगे आपके पास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।